So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video, and we are continuing with this chapter, that is chapter 1, essential of business good English. That is this, okay, essential of good English. ये chapter आज हम लोग end कर देंगे without any doubt. ठीक है, this chapter will be ending today. एंड इस चैप्टर का नोट्स वगैरह सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. So definitely join the Telegram group. If you're a new student to this channel, then do consider subscribing to this channel, because this channel is going to add values to you and it's going to make sure that you clear your CS EET CS executive with beautiful colors, beautiful marks. Understood? Okay. The topic that we are going to start today. Okay, we have ended prefixes yesterday. Affix, prefix, done. Today we are going to start with suffix. Now, understanding the word suffix. देखो, सफिक्स जो है ना वो किसी भी वर्ड को एंड करता है. क्या करता है? एंड करता है. एंड देखो, किसी भी वर्ड को एंड करता है एंड ऑल्सो मेक श्योर कि वो चेंज कर देता है उस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को एंड उस वर्ड के ग्रामेटिकल फंक्शन को चेंज कर देता है सफिक्स. एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से देखना है. ठीक है, ओके. See, for example, the word, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं हम लोग ना. Make some spaces for the desi boys over here. Okay. Now, for example, there are kind of suffix. Understand this very properly. जैसे कि noun suffix, verb suffix, and adjective suffix, adverb suffix. Converting, when I talk about noun suffix, this means, when I talk about noun suffix, it means converting the word into nouns. When I talk about verb suffix, it means convert words into verb. Okay. When I talk about adjective suffix, converting the words into adjective. When I talk about adverb suffix, converting the word into adverb. Understand this very properly. अब सबसे पहले सफिक्स तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लेते, जैसे द वर्ड काइंड, KIND, काइंड. अब नाउ व्हेन यू यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस, यू कैन राइट इट लाइक दिस: ही इज अ वेरी काइंड गाय. ठीक है. नाउ इफ आई एड नेस टू इट, NESS, which is a type of suffix. If I add ness to the word kind, then it becomes kindness. But you can't use the word kindness as you have used the word kind into a sentence in the exact same manner. You have to change it. कैसे change करें देखो, समझो. He is a very kind guy. It's a different kind of sentence. Now the word kindness, when you use the word kindness, it is going to be used in a very different manner, very different type. For example, I'll use the word kindness in a different manner, in a different style. I can use the word at the beginning of the sentence or at the end at the same time, but I'll use the word at the beginning. Let's see. Kindness. Kindness is a beautiful feature of so let's think about it. क्या हो सकता है? Of a kindness is a beautiful future of a prosperous king. ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, prosperous king. या फिर kindness is a beautiful feature of a successful leader. Understood. So when I use suffix with a particular word, जैसे मैंने suffix use किया है ness with the word kind. Now I can't use the word kind and kindness in the same way.
मेरे को चेंज करना होगा। काइंड मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ही इज़ अ वेरी काइंड गाय, ही इज़ अ वेरी काइंड गर्ल, शी इज़ अ वेरी काइंड गर्ल, ठीक है। द किंग इज़ अ वेरी काइंड मैन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पर व्हेन आई टॉक अबाउट काइंडनेस इट्स काइंड ऑफ अ फीचर, सो काइंडनेस इज अ ब्यूटिफुल फीचर ऑफ अ सक्सेसफुल लीडर, है ना, ब्रॉडर है ये वर्ड। तो इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग प्रकार के सफिक्सेस देखें। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया कि सफिक्स किस प्रकार से किसी भी वर्ड से जुड़ जाता है। अच्छा, अब देखो नाउन सफिक्स देखेंगे हम लोग, एक दो एग्जाम्पल करेंगे, समझ लोगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। नाउन सफिक्स, इसको ना थोड़ा हम लोग स्पेस ले लेते हैं, एक छोटा सा स्पेस ले लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। व्हेन आई टॉक अबाउट नाउन सफिक्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ओवर हियर। द वर्ड बीट्रे। बीट्रे का मतलब क्या होता है? बीट्रे का मतलब होता है धोखा, धोखा देना, ठीक है, धोखा देना। अब इससे इस पे अगर हम लोग यूज़ कर दे एक प्रकार का सफिक्स, पकड़ लो ए एल यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो वर्ड बनता है बीट्रेयल। क्या वर्ड बनता है? बीट्रेयल, समझे? BETRAYAL, बीट्रेयल बनता है। और ये जो वर्ड है बीट्रेयल, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट रिजल्ट, इंडिकेट्स रिजल्ट। ये जो वर्ड है बीट्रेयल, ये इंडिकेट क्या करता है? रिजल्ट, ठीक है, या फिर एक्शन। अब पकड़ लो, मैंने इसको लिखा ड्यू टू समीर, ड्यू टू समीर्स बीट्रेयल राहुल could not get the job done। अब इसको समझना है बहुत अच्छे से दोस्तों, सिंपल चीज़ है। बिट्रेयल क्या है? एक प्रकार का धोखा देना। अब अगर बिट्रे है धोखा देना, बिट्रेयल तुम कह सकते हो एक प्रकार का एक्शन। समीर ने क्या किया? समीर ने बिट्रे किया, जिसको हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं बाय राइटिंग बिट्रेयल, ठीक है, समीर्स बिट्रेयल, ठीक है, जिसके कारण वर्ष क्या हुआ? जॉब जो है वो नहीं हो पाया बाय राहुल, राहुल का जॉब नहीं हो पाया, ठीक है। किस लिए नहीं हो पाया? ड्यू टू समीर्स बीट्रेयल, तो एक प्रकार का रिजल्ट है ना। तू अगर पकड़ ले तेरा रिजल्ट अगर पकड़, रिजल्ट मतलब क्या होता है कि नतीजा, है ना। समीर ने बिट्रे किया, जिसके नतीजे के वजह से राहुल का जॉब कंप्लीट नहीं हो पाया, तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिजल्ट या फिर एक्शन कह सकते हो तुम। ये जो वर्ड है बिट्रेयल, समझ में आ रहा है? तो ये एक प्रकार का क्या सफिक्स है बताओ? नाउन सफिक्स, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई वर्ड होता है एक्शन, क्या वर्ड होता है? एक्शन, या फिर एक्शन ही, एक काम करते हैं, वर्ड लेते हैं, एशन लेते हैं, एशन लेते हैं, या फिर ION लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार के वर्ड्स का कोई प्रोनाउंसिएशन होता नहीं है, एक प्रकार के वर्ड्स भी नहीं है, ये सफिक्सेस है जो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एशन, ION, ठीक है। अब जैसे सेलिब्रेट प्लस एशन लगा दिया तुमने, तो क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। क्या हो जाता है? सेलिब्रेशन हो जाता है। होता है कि नहीं? बताओ ना। एक्शन और स्टेट, व्हाट स्टेट? सेलिब्रेशन का स्टेट है, सेलिब्रेशन का। अच्छा, जैसे हम लोग यूज करते हैं वर्ड कोलैब, ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हैं? कोलैब, ठीक है।
तो अगर हम लोग एशन लगा दें इसको तो इसका ये हो जाता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन समझ में आ रहा है? इस प्रकार के वर्ड्स, तो ये जो वर्ड्स है ये है तुम्हारे नाउन सफिक्सेस जो कन्वर्ट कर देता है इनटू अ नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर आता है हमारा ये नाउन सफिक्स हो गया। अब वर्ब सफिक्स देखेंगे हम लोग। वर्ब सफिक्स देखेंगे हम लोग, बहुत इजी है। विच कन्वर्ट्स वर्ड इनटू वर्ब्स, याद रखना, कन्वर्ट वर्ड्स इनटू वर्ड्स इनटू वर्ब्स, ये होता है तुम्हारा वर्ब सफिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एफ वाई लेते हैं, एफ वाई, ब्यूटी। ब्यूटी एक वर्ड है, इसके साथ एफ वाई जोड़ दो, क्या हो जाता है? ब्यूटीफाई। क्या हो जाता है बताओ? बताओ ना, ब्यूटीफाई हो जाता है। ऐसे हम लोग प्योर के साथ एफ आई यूज करने से प्योरीफाई हो जाता है ना? तो ये क्या इंडिकेट करता है? टू मेक। टू मेक मतलब क्या मेक करना? प्यूरिफाई करना। क्या करना? प्यूरिफाई करना। टू मेक, टू मेक और कॉज टू बी। ठीक है, टू मेक और कॉज टू बी, ये सारे सफिक्सेस। अंडरस्टूड? अच्छा, और अब कुछ और भी देखते हैं हम लोग, जैसे कि ईज होते, ईज। ठीक है, फिर आई जेड ई, ये सारे जो है ना, ये हम लोग अलग अलग वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैपिटलाइज, मॉडर्नाइज। ठीक है, कैपिटल, कैपिटलाइज, कैपिटल आई जेड ई, कैपिटलाइज। ठीक है, फिर मॉडर्नाइज, जैसे ये वाला यूज़ करेंगे हम लोग, मॉडर्नाइज। ठीक है, ये क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है? टू मेक और कॉज टू बी। टू मेक, टू मेक और कॉज टू बी, तो ये वर्ब्स है। कैपिटलाइज करना, मॉडर्नाइज करना, किसी भी वर्ड को एज अ वर्ब चेंज कर देना। समझ में आ रहा है? सफिक्स लगा के। गॉट इट? उसी प्रकार से होते हैं हमारे यहाँ पे ये वर्ब सफिक्स हो चुका है। एडजेक्टिव सफिक्स, जैसे कि एबल, ईबल, क्या है देखो, एबल, ईबल, जैसे ऑडिबल, रीडेबल, एडजेक्टिव सफिक्सेस। फिर आता है एडवर्ब सफिक्सेस, इसमें आता है एल वाई, वाइज, जैसे क्लॉक वाइज, टैक्स वाइज, ग्रेटली। ठीक है, इस प्रकार से तुम इसको याद रख सकते हो, सफिक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हम लोग देखने वाले, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा कॉम्बिनेशन वर्ड्स। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन वर्ड्स, कॉम्बिनेशन वर्ड्स ऑफन ग्रीक होता है या फिर लैटिन रूट्स होते हैं। मतलब ओरिजिनल जो वर्ड होता है ना, इनका कहाँ से निकल के आए, वो ग्रीक या तो लैटिन के रूट्स होते हैं, वो रूट वर्ड होते हैं। ठीक है, नाउ दिस आर वर्ड एलिमेंट्स ऑफन फ्रॉम ग्रीक और लैटिन दैट कंबाइन विद एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू फॉर्म द न्यू वंस। एग्जिस्टिंग वर्ड्स के साथ कंबाइन होके न्यू बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आर्च, आर्च बिशॉप, ऑटो, ऑटो पायलट, बायो, बायोलॉजी, क्रिप्टो, क्रिप्टोग्राम, मैल, मैल प्रैक्टिस, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मिड, मिडफील्ड, टेली, टेलीफोन। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम्हारा बायो, क्रिप्टो, मैल, माइक्रो, मैक्रो, मिड, टेली, ये सारे क्या है? हाँ जी बताओ। ये हम लोगों ने ऐड किया है विद द एग्जिस्टिंग वर्ड्स, जैसे कि पायलट जो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर ग्राम जो एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिस एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करता है, स्कोप एग्जिस्ट करता है, फील्ड, फोन। समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग वर्ड्स के साथ जब तुम दूसरे वर्ड्स को कंबाइन करके नया एक वर्ड निकालते हो, नया एक वर्ड निकालते हो, तब जाके हम लोग कहते हैं कि कॉम्बिनेशन वर्ड्स होते हैं ये लोग। ठीक है, और जो वर्ड यूज़ करते हो ना, ये एक प्रकार से लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड्स होते हैं जो तुम यूज़ करते हो विद द एग्जिस्टिंग वर्ड्स। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स जो है ना, ये तो भैया घर में होमवर्क मैं दे रहा हूँ,
होमवर्क चीज़ है। स्पेस किसको कहा जाता है तेरे को पता है दोस्तों? स्पेस, जैसे हम लोग वर्ड लिखते हैं ना, जैसे ये इन दोनों के ये जो वर्ड है इसके बीच में जो ये एरिया है, ये जो एरिया बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं स्पेस, है ना? ये तो सबको पता है दोस्तों। कैपिटल लेटर्स तेरे को नहीं पता? फुल स्टॉप नहीं पता? ये ICSI वाले पता नहीं यार, CS स्टूडेंट्स को बात ज़्यादा ही हल्के में ले रहे हैं। कॉमा नहीं पता, हाइफन, सेमीकॉलन, कॉलन, ये सारा जो है ना, यहाँ से तेरे को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। जो तूने अगर इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया होगा तो तेरे को दिक्कत आ सकता है। इसको रीड कर लेना। कॉलन इसको कहा जाता है, एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, डैश, एलिप्सिस। ठीक है, इसको याद कर लेना एक बार बस। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना। नंबर्स किसको कहा जाता है। अच्छा, इसको ये भी होमवर्क है, ये रीड ना करो तभी अच्छा है तुम्हारे लिए। ठीक है, रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि स्पेस कब लगता है, फुल स्टॉप कब लगता है। ये रीड कर, ये घर में रीड करो आराम से। तुमको पता है कॉमा कब लगता है, हाइफन, ठीक है, सेमीकॉलन। ये कुछ मैं होमवर्क दूंगा। क्यों होमवर्क? इसके पीछे रीज़न ये है दोस्तों कि CS एग्जीक्यूटिव में जब आओगे ना तुम लोग, तुमको बहुत कुछ इंटरप्रेट करना होता है, बहुत कुछ इंटरप्रेट करना होता है। तब जो है तुमको इंटरप्रिटेशन स्किल सीखना होता है। और अगर मैं एक एक करके तुमको वर्ड सिखा दूँ सब, तो तुम घर में बैठ के इंटरप्रिटेशन सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा होमवर्क ले लेना है, डरना नहीं है। अगर तुमको दिक्कत आ रहा है तो देखो, किसी भी वर्ड, कॉलन समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना है। डरना नहीं है कि सर कॉलम बता दो, कॉलन जो है ये कहाँ पे यूज़ करें हम लोग। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क्स, ये रीड करना है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा रीड करना है। अच्छा, फिर हम लोग आएंगे सीधा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एनरिचिंग वोकैबुलरी। अच्छा, वोकैबुलरी के टॉपिक्स। अच्छा, ये जो है ना एक सिंपल एडवाइस है वैसे, एनरिचिंग वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दो। वोकैबुलरी जब कहते हैं ना कोई भी कि भाई तुम्हारा तो वोकैबुलरी बहुत वीक है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी किसी ने तुमको बता दिया कि वोकैबुलरी जो है तुम्हारा वीक है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ। देखो, वोकैबुलरी होता है कि तुम्हारा नंबर ऑफ वर्ड्स, जो जितना वर्ड तुमको पता है, to use it into a sentence. If you don't know many words, you are going to repeat the same words that you speak. ठीक है, जैसे मैं तुमको एक चीज़ समझा देता हूँ। तुमको अगर ज़्यादा वर्ड्स पता नहीं है ना, तो तुम सेम चीज़ों को रिपीट करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाओ, जब तुम बचपन में तुम्हारा सर दर्द करता था, जब तुमको बहुत ज़्यादा हेडेक होता था, तो तुम क्या कहते हो? स्कूल के टीचर को जाके क्या कहते हो? मैम, माई हेड इज़ पेनिंग, ये कहते हो, है ना? क्लास A, क्लास B, नर्सरी में क्या कहते हो? सर माई स्टमक इज़ पेनिंग, मैम माई हेड इज़ पेनिंग। थोड़ा बड़े हो जाते हो, क्लास 1-2 स्टैंडर्ड में आ जाते हो, 3-4 स्टैंडर्ड में आ जाते हो, तुम नया वर्ड सीखते हो सेम मीनिंग का, जो होता है एकिंग। सर माई हेड इज़ एकिंग, सर माई स्टमक इज़ पेनिंग, माई हेड इज़ एकिंग। समझ में आ रहा है? तो ये एक जो है ये नया वर्ड सीखते हो, है कि नहीं? तो क्या होता है कि जैसे जैसे तुम ज़्यादा वर्ड सीखोगे, वैसे वैसे तुम चीज़ों को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, वरना तुम सेम चीज़ को रिपीट करते रहोगे। जैसे पेन का वर्ड है ना? पेन जो है वो रिपीट करते रहोगे तुम, क्योंकि तुमको तुम्हारा वोकैब कमज़ोर है। वोकैब कमज़ोर होने का मतलब सिर्फ यही होता है कि तुमको ज़्यादा वर्ड्स नहीं आते इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आना जो है वो अच्छी बात होता है। अब सिर्फ अच्छी बात ऐसे देखो, अब तुमको और एक चीज़ समझाता हूँ। देखो, एनरिचिंग वोकैबुलरी में तुमको ये भी सीखने को मिलेगा कि तुमको पकड़ लो तुम्हारा वोकैब का नॉलेज है 100। ठीक है, पकड़ लो तुम्हारा वोकैब का नॉलेज है 100 ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 100। 100 है तुम्हारा, बहुत हाई। तुम जिस ऑडियंस से डील कर रहे हो उनका वोकैब है 50। ठीक है, बहुत, इट्स नॉट टू हाई, इट्स एवरेज। सो यू कांट बी यूजिंग extraordinary words, extraordinary vocabs with such kind of audience। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा तुम क्या बोल रहे हो। तो enriching vocabulary में ये भी तुमको समझना होता है कि तुम्हारा ऑडियंस क्या, कौन है, और तुमको किस प्रकार के vocabs को यूज़ करना है, किस प्रकार के वर्ड्स को यूज़ करना है। तब जाके तुम समझा पाओगे उनको, तब जाके वो लोग समझ पाएंगे। समझ में आ रहा है? ये भी बताया गया है इंग्लिश के स्टडीज़ में कि
वोकैब इंक्रीज करना इट्स अ गुड थिंग, ऑल्सो एट द सेम टाइम यू हैव टू नो कि कौन से ऑडियंस के साथ तुम डील कर रहे हो और उसके हिसाब से तुमको तुम्हारे वोकैब्स को चुनना है, वर्ड्स को चुनना है. तो वोकैबुलरी इज अ सुपर पावर इन कम्युनिकेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. द मोर वर्ड्स यू नो एंड बहुत क्रूशली तुम वर्ड्स को जैसे तुम समझ पाओगे ना, तो तुम प्रिसाइसली उसको तुम यूज़ कर पाओगे. कहाँ पे कौन सा वर्ड घुसा देना है. जैसे डॉक्टर शशि थरूर जी जो है, हमारे शशि थरूर जी, वेरी फेमस पॉलिटिशियन. सो उनका वोकैब देखो तुम, वो इंग्लैंड में जाके जिस प्रकार से वोकैब यूज़ करेंगे ना, ही कांट यूज सच काइंड ऑफ वोकैब्स विद द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज इंडियन ऑडियंस को उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा. तो इवन इफ हिज vocabulary is extreme, he can't use such kind of words with the Indian audience, because Indian audience को simple English समझ में आता है. Understood? Because this is not our first language. अच्छा, understood? समझ में आ चुका है. ओके, अब सीधा यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या बताए यहाँ पे. Why do we need vocabulary? Better comprehension, improved communication, verbal and writing, better understanding of others, positive impact, helps personal, social, personal, professional life. अच्छा, देखो, एक वर्ड तुम समझो, सटल डिफरेंस. सटल डिफरेंस का मतलब होता है जैसे ही हम, जैसे पेन होता है ना, द वर्ड पेन, उसका एक सिनोनियम हम लोग कह सकते एकिंग, एक, ठीक है. हर सिनोनियम का एक सटल सटल डिफरेंस होता है, सटल चेंज होता है. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम. समझ में आ रहा है. सिनोनियम्स में ने, सिनोनियम्स जब मैं कहूँ उसका मतलब ये होता है कि एक वर्ड का अलग अलग इक्वल वर्ड्स है ना, किसी भी एक वर्ड का अलग अलग वर्ड्स जो है सेम मीनिंग का निकलता है, लेकिन वो सेम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है, उसका सटल एक डिफरेंस होता है, सटल एक डिफरेंस होता है. ठीक है, तो उस सटल डिफरेंस को एड्रेस करने के लिए यू हैव टू नो मोर एंड मोर वर्ड्स. समझ में आ रहा है. देखो देखो, नो द एग्जैक्ट मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्ड. सिनोनियम्स ऑफन हैव सटल डिफरेंसेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको समझना है. सिनोनियम्स ऑफन हैव सटल डिफरेंसेस. यूज अ डिक्शनरी. एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एग्जाम्पल नहीं देखना है, ये देखो, यूज अ डिक्शनरी. अब यूज अ डिक्शनरी क्यों बताया जाता है कि सो दैट यू कैन इंक्रीज योर वोकैबुलरी. एग्जाम्पल्स हम लोग और आगे जाके देखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको ये समझना है. सिनोनियम्स जैसे तुम यूज़ करते हो ना वर्ड्स, तो सिनोनियम्स वर्ड, जैसे तुमको पेन का कोई भी सिंपल वर्ड पता है, तुम अचानक गूगल में जाते हो, पकड़ लो तुमको कोई स्पीच लिखना है या फिर कुछ भी लिखना है, तुम गूगल में जाके सिनोनियम्स ढूंढते हो. पोएम्स लिखना है, तब तुम गूगल में जाके सिनोनियम्स ढूंढते हो कि तुम सोचते हो कि यार सेम वर्ड जो है ना, थोड़ा अच्छा वर्ड मिल जाए मेरे को, थोड़ा बेटर इंग्लिश का वर्ड मिल जाए तो मेरे को, मेरा इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, है ना. ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ा वर्ड लिख दूंगा तो लगेगा यार बहुत आता है मेरे को. तो उस प्रकार से, उस इंटेंशन से तुम जाते हो गूगल के ऊपर सर्च करने के लिए. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम, नॉट मेनी पीपल नो दैट ऑल द सिनोनियम वर्ड्स डजंट हैव द सेम मीनिंग. इट हैज़ अ वेरी सटल डिफरेंस. सटल डिफरेंस होता है. अब जो परफेक्ट कम्युनिकेटर होता है ना, जिसको पूरा नॉलेज होता है उन सारे वर्ड्स का, वो परफेक्टली वो यूज़ कर पाता है, परफेक्टली वो यूज़ कर पाता है. जैसे कि द वर्ड पेन एंड एक, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, वही तुमको समझा देता हूँ. जैसे द वर्ड पेन एंड एक, ये दोनों जो है ना, पेन एंड एक, ये पेन एंड एक जो है वो डिस्क्राइब करता है डिस्कम्फर्ट. क्या? डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट. ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में एक सटल डिफरेंस है. जैसे द वर्ड एक है ना, या फिर एकिंग, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी डल मोमेंट को, डल परसिस्टेंट पेन को समझाने के लिए ना. एकिंग इज एक, द वर्ड एक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेन, है ना. तो उस प्रकार के पेन को समझाने के लिए हम लोग कहते हैं कि माई हेड इज एकिंग, माई क्या है इसको, माई स्टमक इज एकिंग. बट जब द वर्ड पेन है, ये हम लोग ब्रॉडर यूज़ करते हैं, इसका ब्रॉडर मीनिंग होता है, अलग अलग जगह पे यूज़ होता है. तो द पर्सन हु नोज हाउ टू अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ वर्ड्स, दे विल यूज पेन एंड एक इन डिफरेंट सेंटेंसेज एंड नॉट इन द सेम सेंटेंस. ठीक है, पेन अलग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेगा, एक जो है वो अलग चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करेगा. दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रेड हो. सो इट्स बेटर फॉर अस. ठीक है, अच्छा.
टिप्स, कुछ टिप्स है वोकैबुलरी इंक्रीज करने के बाद भी तुमको कुछ याद रखना है. सिंप्लिसिटी, यूज सिमिलर लैंग्वेज फॉर क्विकेस्ट रिस्पॉन्स. जस्ट अंडरस्टैंड दिस, यूज सिंपल लैंग्वेज फॉर क्विक रिस्पॉन्सेस. तुमको ना स्मार्ट बनने के लिए डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है. यूज सिंपल लैंग्वेज व्हेन यू कैन गेट द आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल. ठीक है. Familiar words. Use common words. Avoid stiff, difficult ones unless necessary for precision and understood by the reader. Don't overuse difficult words. Difficult words को overuse नहीं करना है. ठीक है. This is the basic. आज मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ. Now, किन किन को पता है सदगुरु के बारे में? सदगुरु. He speaks in English. एंड दूसरा जो है वो है शशि थरूर. शशि थरूर, ही ऑल्सो स्पीक्स इन इंग्लिश. इसका इंग्लिश थोड़ा ब्रिटिश एक्सेंट का है और इनका इंग्लिश जो है काफ़ी हद तक अमेरिकन एक्सेंट का है. ठीक है. अब तुमको पता है अब देखो दोनों का काम क्या होता है. ये भी पब्लिक भाषण देते, ये भी पब्लिक भाषण, दोनों पब्लिक स्पीकर है दोस्तों. सदगुरु जी भी पब्लिक स्पीकर है एंड शशि थरूर जी भी पब्लिक स्पीकर है, बिकॉज वन इज़ अ पॉलिटिशियन, अदर वन इज़ अ गुरु, पब्लिक स्पीकर, हीलर. ठीक है. तो ये है दोनों. अब दोनों के बीच में एक सटल डिफरेंस क्या है पता है? दोनों के बीच में सटल डिफरेंस ये होता है कि तुम सदगुरु की स्पीचेस सुनोगे ना, ही यूजेस कॉम्प्लेक्स वर्ड्स, बट उसका टोन, उसका जो क्लियरेंस है, जो वर्ड्स वो पुट करते हैं ना, इतना क्लियर एंड सटल रहता है कि सामने वाले इंसान को ओवरवेलमिंग नहीं लगता है. सामने वाला इंसान समझ जाता है उस चीज़ को, क्या भी वो बोलने की कोशिश कर रहा है. शशि थरूर जी जब भी बोलते हैं, वी अंडरस्टैंड 30% एंड 40%, रेस्ट वर्ड्स वी जस्ट अज्यूम कि चलो ठीक ही बोल रहा होगा. ठीक है. मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 30 to 40% समझ पाते हैं, बाकी दे अज्यूम कि यार ठीक ही बोल रहा होगा, समझ में आ रहा है. लेकिन फॉर अ क्लियरर कम्युनिकेशन, ठीक है, इट इज़ नेवर अबाउट एक्सेंट, इट इज़ नेवर अबाउट हाउ गुड यू स्पीक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, इट्स अबाउट हाउ वेल यू कम्युनिकेट टू द अदर पर्सन. ठीक है. हाउ वेल यू कम्युनिकेट. सो एक्सेंट की दुनिया से निकल जाओ तुम लोग. कोई भी अगर बच्चा ऐसा है जो एक्सेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, प्लीज़ डू नॉट फोकस ऑन दैट. Focus on more precise and clearly mentioning and using the word so that the other person behind you who is sitting there listening to you can understand what you are speaking. There is no need to put British accent or any kind of American accent. You put your own accent. सदगुरु जी जो पूरा completely 90% इंडियन एक्सेंट में बात करते हैं, प्लस जो है 10% अमेरिकन एक्सेंट यूज़ करते हैं, सो दैट द ऑडियंस इज सिटिंग इन द अमेरिकन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट. ठीक है. तो ये यहाँ पे तुमको बताने की कोशिश कर रहा है कि ओवर यूज मत करो डिफिकल्ट वर्ड्स का. व्हेन इट इज नेसेसरी यू यूज इट, व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी यू डोंट यूज इट. यू कीप इट सिंपल. अवॉइड जार्गन. जार्गन का मतलब ही होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्स नहीं करना चीज़ों को. ठीक है. देखो अब तुमको एक चीज़ समझाता हूँ. जब तुम लोग CS में कंपनी लॉ पढ़ लोगे ना, तुम्हारा कंपनी लॉ का एक लैंग्वेज आ जाएगा. कंपनी लॉ पढ़ने का ना एक लॉ का एक अलग लैंग्वेज होता है बात करने का. यू सी द वर्ड हाउ द जजेस, द एडवोकेट्स, द लॉयर्स दे स्पीक, है ना, उनका लैंग्वेज अलग होता है. लीगल लैंग्वेज कहते हैं हम लोग उसको. क्या कहते हैं? लीगल लैंग्वेज, विच इज एग्जैक्टली द सेम वे वी इंटरप्रेट द कंपनी लॉ एंड ऑल दिस लैंग्वेजेस. जैसे एक सिंपल मैं सेंटेंस बता दो. नॉट विथ स्टैंडिंग एक वर्ड है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन इन द अबव सेक्शन. ठीक, इस प्रकार से वर्ड जाता है. अब ये नॉर्मल पीपल को समझ में नहीं आएगा. ठीक है. जब तुम JIGL के काफ़ी वर्ड्स तुम सीख जाओगे और तुम यूज़ करने की कोशिश करो. JIGL इज अ सब्जेक्ट फॉर CS एग्जीक्यूटिव. नॉर्मल लोगों को ये समझ में नहीं आएगा. सो अवॉइड यूजिंग जार्गन. ये है जार्गन. जार्गन ये है कि इट इज़ रिलेटेड टू अ मेडिकल भाषा, medical language. It is related to a technical भाषा, technical language. It's related to a legal terms of language. तो you that avoid करना until and unless the person you are speaking to is of the same background. ठीक है, इसको avoid करना है. Language specific to a field, जैसे law हो जाए, tech हो जाए,
मेडिकल हो जाए. यूज ओनली इफ द ऑडियंस अंडरस्टैंड्स इट, अदरवाइज डोंट यूज सच काइंड ऑफ, यू नो, यू आर साउंडिंग स्मार्ट बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू मेक श्योर कि सामने वाला इंसान तुमको समझ पा रहा है ना. सो उसी चीज़ को तुमको ध्यान में रखना. अच्छा अच्छा, अवॉइड वर्बोसिटी. वर्बोसिटी का मतलब होता है यूजिंग टू मच वर्ड्स, यूजिंग टू मच वर्ड्स. अब देखो, ये ना वर्बोसिटी जो है ये मैं चाह कभी अवॉइड नहीं कर पाता. ड्यूरिंग व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑल, आई again and again explain and use the same words again and again and try to explain it again and again so that you all understand it. ठीक है, during teaching and all this kind of things are neglected and it's fine, but when you are communicating with somebody else, ठीक है, try to avoid verbosity. verbosity का मतलब होता है using too many words to explain something. ठीक है, use only necessary words. more words it does not mean clarity. इस बात का ध्यान रखना. avoid superfluous than excessive words. ठीक है, you have to understand this. Now in the field of teaching, जैसे मैं teach कर रहा हूँ, I have to use excessive words so that every single child out there who's sitting there he understands. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक सिंगल सेंटेंस में समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बोल बोल के समझाना पड़ता है ना. तो ऑडियंस जो है दोनों प्रकार के हो सकते हैं. सो ड्यूरिंग टीचिंग you can avoid such kind of advices, but normal when communicating with one another, use only specific words which are related and don't use too much words. Too much words doesn't mean it's it is clarity. ठीक है, okay. choose short words, precise meaning का. gender neutral words use करना. ठीक है, जनरल न्यूट्रल ये इंग्लिश फिलॉसफी है जो धीरे धीरे यहाँ पे आ रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू एड्रेस द वर्ड इक्वालिटी इन द सोसाइटी. जैसे जनरल न्यूट्रल, जैसे कि हम लोग पुलिस ऑफिसर कहे, है ना, देयर वाज अ पुलिस ऑफिसर, वी शुड नॉट से पुलिस मैन बिकॉज वुमेन्स आर ऑल्सो देयर. सो जनरल न्यूट्रल करना है. ठीक है, फिर हम लोग जैसे वर्ड सर्वर की यूज़ करें, सर्वर, नॉट वेटर, नॉट वेट्रेस, सर्वर. ठीक है, चेयरपर्सन को यूज़ करें, नॉट चेयरमैन. ये एडवाइजेस है, ये एडवाइजेस है जो हाल फिलहाल डेवलप हुआ है. तुमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये बहुत पहले से था. इंग्लिश वाले जो लोग थे, जो इंग्लिश बनाए थे लैंग्वेज, वो पहले से जो है ना बहुत ज़्यादा सोच के रखे थे इक्वालिटी के बारे में. इंग्लैंड में इक्वालिटी आया बहुत लेट दोस्तों. हमारो 5000 साल से इक्वालिटी चल रहा है. हमारे यहाँ पे, हमारे हिंदुस्तान में मेन गॉड्स के जो टेम्पल्स हैं वो कम है, लेस है एज कम्पेयर टू वुमेन गॉड्स. तो यहाँ पे तो इक्वालिटी हमेशा वुमेन्स को ज़्यादा ही मिला है. अंडरस्टूड. जब इंडिया में डिसाइड हुआ था ना कि वोटिंग होगा, डेमोक्रेसी होगा, देयर वाज नेवर अ सेकंड थॉट कि वुमेन्स को राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं. और ब्रिटेन में, अलग अलग कंट्रीज़ में, जो बहुत पहले की कंट्रीज़ है, जो पहले से आके हमारे यहाँ पे इन्वेड किए हैं और जिनका लैंग्वेज हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे वुमेन इक्वालिटी था ही नहीं. ये बहुत रीसेंट चेंज हुआ है. एंड वही रीसेंट चेंज तुमको, पहले तो वुमेन इक्वालिटी लाने में उन लोग ने देर कर दिया, उसके बाद अब वो लोग ला रहे हैं जेंडर इक्वालिटी, जेंडर न्यूट्रल. क्या है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, सिनोनिम्स का मतलब होता है वर्ड्स विथ नियरली द सेम मीनिंग. याद रखना, सिनोनिम्स नेवर मीन्स words that have the same meaning. Synonyms always mean words having nearly the same meaning, not the same meaning but nearly the same meaning. Okay, इतना तुमको याद रखना है. Antonyms मतलब opposite meaning वाले words. Homophones का मतलब होता है same words sounding same but have different meaning. For example, to, the word to, मैं to लिख सकता हूँ, मैं to लिख सकता हूँ, मैं to लिख सकता हूँ. ये भी to, ये भी to, ये भी to. ठीक है, समझ में आ रहा है? सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग. तो ये है होमोफोन्स. अच्छा, फिर होता है होमोनियम्स. ये है अ सिंगल वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग. एग्जाम्पल, बियर. बियर का अलग अलग मीनिंग हो सकता है. बियर मतलब टॉलरेट करना भी हो सकता है. आई एम बियरिंग यू, आई एम जस्ट बियरिंग यू. टॉलरेट करना हो सकता है. बियर एक एनिमल भी है. एड्रेस का मतलब लोकेशन भी होता है. एंड स्पीक टू बी, आई एम एड्रेसिंग
अ पैनल ऑफ जजेस, या फिर आई एम एड्रेसिंग अ पैनल ऑफ मेंबर्स, ठीक है। एड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि स्पीक करना किसी को, या फिर तुम्हारा लोकेशन। तो एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग। अब बताओ कितना बकलोल हो सकता है ये लैंग्वेज इंग्लिश। You may be thinking that this is one of the most beautiful language, sophisticated language. You only think this language is sophisticated and beautiful because we have been ruled by this language. Otherwise, other than that, this language is the most stupidest language I've ever heard and spoken in this entire world. Why? सोचना यार, एड्रेस एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग। लोकेशन या तो स्पीक टू, बियर एनिमल या तो टॉलरेट करना, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू सी योर ओन रीजनल लैंग्वेज, जब तुम अपने रीजनल लैंग्वेज को देखोगे ना, संस्कृत द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, इसको छोड़ देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। तुम सिर्फ रीजनल लैंग्वेज अगर तुम चेक करोगे, मराठी, तमिल, फिर कन्नड़ा, फिर बंगाली जिसको हम लोग कहते हैं बांग्ला, फिर तुम्हारा मराठी, ठीक है, भोजपुरी, तो तुम्हारे जितने भी लैंग्वेजेस है ना, वो दे आर मच मोर फर्दर सिग्निफिकेंटली better than that of English. But we have to learn this language only because the world speaks this, and England have been ruling a lot of countries back then. That's why. अच्छा, वैसे रशिया जो है वो इंग्लिश में बात ही नहीं करता, चाइना जो है इंग्लिश में बात ही नहीं करता, क्योंकि they were never ruled by England ना। समझ में आ रहा है? समझो, English is never I recently met, it's not recently, I have met a friend, I've stumbled upon a friend, you can say that, ठीक है। I've stumbled upon a friend and I've been good with her. अब वो जो है ना भैया, वो बहुत डेंजरस कैथलिक स्कूल से पढ़ी हुई लड़की है। She speaks so much English, so much English, so much English, but when in a particular day I have debated her and we were debating about the language English. She was saying that anybody who's intellectual can speak English really good. If you can speak English really good, that means you're an intellectual person. इसके ऊपर डिबेट था, तबाही मचा दिया था मैंने वहाँ पे। उसको समझाया कि learning and understanding and being able to speak a particular language in a very fluent way or in a very modernized way, in a very particular accent, doesn't mean that you have any kind of intellectual properties or intellectual advantages from the person who could not speak such, ठीक है, in a similar manner. ये मैंने उसको समझा दिया था उस डिबेट पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपर्ली, ठीक है। अच्छा, फिर देखो सर, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो और इंग्लिश के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर। ये तो तुमको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज़ पार्ट ऑफ CSET, अदरवाइज आई हैव नो इंटरेस्ट इन स्पीकिंग और टीचिंग इंग्लिश। हमको कंपनी लॉ पढ़ना है दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत मतलब हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा है कंपनी लॉ। फिर तुम्हारा SBIL, JIGL, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉस, ये सारा हम लोग को पढ़ना है। कंपनी लॉ, सेबी पढ़ना है, अंडरस्टूड, CCI पढ़ना है, कितना कुछ लॉ है, वो सब कुछ पढ़ना है हमको अपने को। नॉट इंग्लिश, इंग्लिश इज़ जस्ट अ मीडियम। पता नहीं ICSI ने यहाँ पे इंक्लूड क्यों किया है इतना ज़्यादा। अच्छा, सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, व्हाट डज दिस मीन? यूजिंग वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड फॉर कंसिस्टेंस। देखो एग्जाम्पल में थोड़ा ईजी लेता हूँ सो दैट सबको समझ में आ जाए। जैसे द वर्ड फ्रजाइल, ये तुमको अमेजोन से ऑर्डर करते हो ना, अमेजोन से ऑर्डर कर, तो कांच का कुछ भी आइटम तुम ऑर्डर करना, देखना बक्से में लिखा होगा फ्रजाइल। फ्रजाइल का मतलब होता है ईजिली ब्रोकन, जो ईजिली ब्रेक हो जाए, मतलब कांच का कोई चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ईजिली ब्रोकन, दो वर्ड है, दो वर्ड को हम लोग एक ही वर्ड में अगर निपटा दे तो कैसा होता है? अच्छा होता है, फ्रजाइल। तो यही है सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि दो वर्ड का एक वर्ड का सब्स्टिट्यूशन निकाल देना, मतलब दो वर्ड पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक ही वर्ड पढ़ो, है ना। ईजिली ब्रोकन को हम लोग लिख सकते हैं एक वर्ड में फ्रजाइल। तो इन प्रकार के वर्ड्स को कहा जाता है सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, वर्ड्स फ्रीक्वेंटली मिसस्पेल्ड, इसको देखना नहीं है, एकदम बेकार। एब्रीविएशंस तुमको पता है, जैसे MA, PM, BBC, है ना, शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ बिग वर्ड। अच्छा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है? Expressions peculiar to a language, meaning it's literal and sparkle and polish, cannot be directly translated. देखो, phrase का मतलब होता है group of words, maybe not a full sentence with meaning. Idiom का मतलब होता है phrase with figurative meaning, ठीक है।
फ्रेज जैसे कि ऑन द हिल, आइडियम जैसे कि किक द बकेट, स्पिल द बीन्स। जैसे कहावत होता है ना, तुमको पता है ना हिंदी में कितने सारे कहावत है। ये आइडियम्स एंड फ्रेजेस जो है, इडियम्स स्पेशली आइडियम्स कह लो या फिर इडियम्स कह लो, ये जो है ये है एक प्रकार का कहावत। नाच ना जाने आंगन तेरा, ये क्या है? कहावत। ये क्या है? इडियम है एक, या फिर आइडियम है एक। क्या है, समझ में आ रहा है? स्पिल द बीन का मतलब पता है क्या है? स्पिल द बीन, स्पिल द बीन का मतलब गुर गोबर कर देना। क्या करना? गुर गोबर कर देना हिंदी में। किक द बकेट, किक द बकेट का मतलब होता है एक्सपायर कर जाना। एक्सपायर मतलब समझ में आ रहा है? मर जाना। ही किक द बकेट लास्ट ईयर, या फिर माई ग्रैंड मादर किक द बकेट लास्ट ईयर। इस प्रकार से यूज़ करना वर्ड्स। चल दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग सीधा। इसको इग्नोर करो, इतना तुमको याद रखना है, काफ़ी है। फॉरेन वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको कट कर दो। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशंस ऑफ पैसेजेस आर्ट ऑफ समराइजिंग। कॉम्प्रीहेंशंस किस किस को पता है बताओ? एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उस पैराग्राफ में क्या है नहीं है तुमको समझाना पड़ता है, वही है कॉम्प्रीहेंशन। और इसको तुमको यही सिर्फ मीनिंग याद रखना कि ये है क्या। अबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड और लिसन टू। एक्सरसाइज, रीडिंग एन अनसीन पैसेज एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशंस कैसे रीड करते हैं इसका थोड़ा एक स्ट्रैटेजी तुमको बता दिया। तुमको एग्जामिनेशन में ना तो कॉम्प्रीहेंशन आएगा ना कुछ आने वाले, ये सारे नहीं आने वाले। तुमको टिक द करेक्ट आंसर लिखना है दोस्तों। तुम वहाँ पे इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशंस नहीं आने वाले। कॉम्प्रीहेंशंस दोस्तों इंग्लिश में जो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखा जाता था 1-2 पेज का, और वहाँ पे क्वेश्चंस पुट कर देते थे और तुमको ये पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर्स करना पड़ता था। ये होता है कॉम्प्रीहेंशन। दिस इज नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन बिकॉज यू हैव टिक द करेक्ट आंसर। इतना टाइम नहीं है दोस्तों, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन तुमको थोड़ा एडवाइस दे दिया है कि कैसे तुमको कॉम्प्रीहेंशंस लिखना है। जनरल नॉलेज के लिए दोस्तों ले लेना है बस। अच्छा, बस खत्म। यहाँ पे खत्म हो जाता है तुम्हारा एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही पढ़ना है जितना मैंने समझाया है। इसके ज़्यादा तुमको कुछ भी नहीं करना है इस चैप्टर में। ये पैराग्राफ मैं, ये नोट्स मैं तुमको अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही रखते दोस्तों। जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।